کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. جدھر ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا گکھری منڈی میں, ادھر بھی ایک نہ ایک جمعے میں کچھ نہ کچھ ضرور انجینئر صاحب کے بولتے ہیں. وہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جیلم تعریف میں بولتے ہوں گے. نہیں, اچھا برائی میں بولتے ہیں. ہاں. علی بھائی کو جب سننا شروع کیا تو میں تو یہ علیحدہ باتیں ہو رہی قرآن و سنت کے جو اندر لکھی ہوئی ہیں وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ جو کہانیاں میں کروائی جاتی ہے تو یہ دین میں کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اور آج ہم نے فزیکلی ان کو سامنے دیکھا اور بڑی خوشی ہوئی. اور میں پہلے سوچ رہا کہ 5 گھنٹے کیسے گزریں گے, لیکن 5 گھنٹوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا. الحمدللہ. جن سے میں نے سیکھا ہے ون آف دا ٹاپ پلیسٹ ہیں کہ جنہوں نے کافی رہنمائی کی. ڈاکٹر اسرار احمد, بلکہ وہ بھی یہاں پہ ہیں. وہ بھی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ توحید بیان کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارا خلاف کیوں ہے؟ ہاں, ان کا جو میں نے مین نوٹ کیا نا, تو وہ جو انجینئر صاحب نے مین جو ہے نا, وہ جو 2812 نمبر حدیث ہے نا, جو غلاظت باہر آئی نا, میں نے بتایا کہ ہم بھی فرقہ ہیں. ہاں, تب ان کی باتیں بھی بڑی سمجھ میں آنے والی. کوئی مطلب جس طرح ان کے پوائنٹ آف ویو نا, ان کے بھی پوائنٹ آف تقریباً سیم ہے. وہ بھی اس طرح نہیں کہتے کہ ہم دے دیں گے سارا کچھ. وہ کہتے ہیں خود ہم پتہ نہیں, ہم نے نہیں, انہوں نے کہا ہے ایک ویڈیو میں, وہ تو منارے سے چلی, میں بخارے سے چلا. پہلے میں ایک بریلوی درس میں پڑھتا رہا ہوں, بہت شرک بابوں کو خدا مانا ہوا تھا ایک قسم کا. اچھا, تو بس بابوں کے پجاری تھے. تو ویڈیو وغیرہ دیکھی میں نے, وہ جا کے بندے کو بندہ ایک لائیو دیکھ لے. تو نہیں, آپ لوگوں سے تو زیادہ گلا, آپ تو شہردار تھے, آپ تو جانتے تھے, خود آ کے سن لیتے, پوچھ لیتے. شرک کرتے تھے, مزاروں پر جاتے تھے, سجدے کرتے تھے, شمال ڈالتے ہو گیا. ہاں, رومال ڈالتے تھے, چادریں ڈالتے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھیں. اللہ اکبر. ایسی کوئی بات والدین کے کنسیپٹ کے بارے میں مطلب میں نے بھی دیکھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی اپنے مطلب وہاں پہ تو شاہی کو نہیں, لیکن آج پتا چلا وہ بات کیسے ہے. وہ بات کیسے ہے, وہ جو بات بول رہے ہیں اس کو پڑھ لیں خود. جب وہ پڑھے گا ایک دفعہ, وہ پڑھنا شروع کر دے گا نا, اور اکثر لوگ اسی وجہ سے نہیں پڑھتے. پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. صحیح ہے, صحیح ہے. صحیح مسلم کے وہ حدیث ہے. نہیں, وہ تو الگ بات ہے, گستاخیاں کرتا ہے صحابہ کی. نہیں, ہمیں تو کوئی کسی نہیں, آپ نے کوئی نہیں دیکھی. ٹھیک ہو گیا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو ہمارے مولوی سے وہی کہتے تھے, یہ کون ہے؟ سمر صاحب. اچھا, وہ گالیاں نکالتا تھا. ہم نے کہا یہ سن کر تو دیکھیں یہ کیا مطلب وہ علی بھائی کہتے کیا ہیں. تو ہم نے جب سننا سٹارٹ کیا تو ہمیں پتہ چلا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ تو سارے ہمیں کہانی وہ تو ہمیں بابوں کی کہانیاں بتاتے رہتے ہیں. تو جو بندہ سچ بتاتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی طرف نہ چلے جائے, کیونکہ چندوں کا ہمیں تو کوئی ضرورت ہے نہیں علی بھائی کو. ہم نے جو بات کی ہے وہ مسلم شریف سے پڑھی ہے, اور مرزا صاحب کی ریفرنس ہے. اگر وہ نہ ہمیں بتاتے تو ہم تو آخری دم تک گمراہی کے راستے پہ چلتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, حال میں چونکہ سیشن ختم ہو چکا ہے, آج 152 سیشن نمبر, اور سیشن ختم ہو گیا ہے. حال میں آئے ہوئے لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں. تو آئیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ میرا نام لیاقت ہے. جی لیاقت علی. جی میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں. ویسے میرا جہلم سے ہی تعلق ہے. جہلم کدھر سے؟ جہلم مجاہد آباد سے. مجاہد آباد سے. جی. کب سے سن رہے ہیں انجینئر صاحب کو؟ انجینئر صاحب کو تقریباً 1 سال ہو گیا سن رہے ہیں. اچھا, تعارف سعودی عرب میں ہی ہوا؟ جی وہیں ہوا. میں ابھی چھٹی آیا ہوں, تھوڑی سی چھٹی ہے مختصر. تو نیگیٹو تعارف تھا, پازیٹیو تعارف تھا؟ جی شروع میں تو نیگیٹو تعارف تھا. آپ تو کہہ رہے ہو کہ میرے شہر سے کیا ایسی بلا نکل آئی ہے. جی یہی بات ہے. اچھا, اچھا, پھر بعد میں جب سننا شروع کیا تو کیسے قائد کلیئر ہوا ہے؟ دیکھیں, عقیدہ جو ہے نا وہ ہمارے قرآن کا ہونا چاہیے اور ہماری حدیث کا ہونا چاہیے. جو بیس ہے نا, کسی بھی بلڈنگ کی بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے,
اور وہ ہمارے مسلمانوں کی بیس جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے. جو چیز قرآن میں لکھی ہے, جو حدیث میں لکھی ہے, ہمیں وہ بتائے گا کوئی, ہم اس کو سنیں گے, اس کی مانیں گے. نہیں, یہ کرائٹیریا پہلے بھی تھا آپ کا جب ہم نمازیں پڑھتے تھے علماء کے پیچھے, وہ بتاتے تھے قرآن حدیث, وہ تو کہانیاں سناتے تھے, ہم سبحان اللہ کہہ دیتے تھے. نہیں, اس سے پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا. ہاں, غور نہیں کیا. انجینئر صاحب نے دماغ بھی کھول دیا نا. دماغ کھول لے. کریٹیکل تھنکنگ انجینئر صاحب نے سکھا دی ہے. اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے, ہمارے سننے والے کو, اور مجھے جب فائدہ ہوا ہے تو میرے ساتھ والے جو لوگ ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ماشاءاللہ. جو میرے دوست احباب ہیں, میرے جب دماغ کھلا ہے تو میرے ساتھ میں جو بیٹھے لوگ ہیں, گھر والے ہیں, دوست احباب ہیں, ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. فرسٹ ٹائم آئے؟ جی, پہلی دفعہ آئے ہم. ٹھیک ہو گیا. اندر گئے بھی, ملاقات کی؟ نہیں, ابھی نہیں ملاقات ہوئی. کیسا تھا آج کا سیشن, کیسا تھا؟ انجینئر صاحب کے بارے میں علماء کہتے ہیں گستاخ بھی ہے, بدعقیدہ بھی ہے, اور کہتے ہیں بندے بھی بعض دفعہ, میں اس دن ایک بندے کو سن رہا تھا کہ اپنے بندے سوال بھی نہیں کرنے دیتا. کیسا پایا آج مجلس, کیسی تھی؟ جی, سوال جواب کا تو سیشن بہت زبردست تھا, اس کے علاوہ بھی سیشن بہت زبردست تھا, کافی معلومات میں اضافہ ہوا. جزاک اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ محمد اختر. محمد اختر. جی. اختر صاحب کدھر سے آئے؟ میں گکھڑ منڈی سے. گکھڑ منڈی سے. خیریت ہی, کیا کرنے آئے تھے؟ میں پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہوں. ہاں, تو میں نے پہلے سعودیہ میں ہوتا تھا, تو ادھر آیا تو بس میں یوٹیوب استعمال کرتے تھے کافی, ادھر سے جیسے کلپ آ جاتے ہیں, تو ایسے ہی انجینئر صاحب کا بھی آ گیا, سنا. تو میں شروع سے الحمدللہ ہم تو اہل حدیث تھے. اہل حدیث تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کو روکا نہیں علماء نے, اہل حدیث علماء نے؟ ہاں, وہ تو جدھر ہم جمعہ پڑھتے ہیں نا گکھڑ منڈی میں, ادھر بھی ایک نہ ایک جمعے میں کچھ نہ کچھ ضرور انجینئر صاحب کے بولتے ہیں. وہ انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جیل تعریف میں بولتے ہوں گے؟ نہیں, اچھا, برائی میں بولتے ہیں. ہاں. تو وہ میں نے جب یوٹیوب پہ سنا نا, تو میں نے سنا یار یہ تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں صحیح, یہ کوئی اہل حدیث عالم ہی ہے, پتا تو نہیں نا, مطلب صحیح ہے. ہاں, تو میں بڑا خوش ہوا یار, ظاہر خوشی ہوتی ہے اس طرح قرآن حدیث بیان کرنے والے ہیں. اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ سننا شروع کر دیا. وہ میں نے اپنے بھی تھے, میرے بانجھے تھے, وہ سارے اہل حدیث ہیں. تو ان کو میں نے بتایا, تو وہ بولنے لگے ماموں جی ہم نے بھی سنا ہے. تو اس طرح وہ میرے سے پہلے آ گئے, وہ ادھر ہو کے گئے, میرے 3-4-5 نا ہو کے گئے. پھر مجھے بھی موقع مل گیا, میں نے کہا چلو میں بھی انشاءاللہ چکر لگاؤں. اچھا, آپ نے کیا نکالا, آپ نے کیا فیل کیا, کیوں بکس رکھتے ہیں؟ ہاں, میں جو مین چیز میں نے نوٹ کی ہے نا, وہ ایک بات میں ختم ہو جاتی ہے. جو انجینئر صاحب نے کہا نا کہ اللہ نے کہا قرآن میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بے شک, جب اللہ کہہ رہا ہے کہ فرقے نہیں بنانے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ فرقوں کے بغیر ہم ہماری نہیں. میرا سوال اہل حدیث کے اوپر ہے نا. ہاں جی, کیا مسئلہ ہے, توحید بیان کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارا خلاف کیوں ہے؟ ہاں, ان کا جو میں نے مین نوٹ کیا نا, تو وہ جو انجینئر صاحب نے مین جو ہے نا, وہ جو 2812 نمبر حدیث ہے نا, جو غلاظت باہر آئی نا, میں نے بتایا کہ ہم بھی فرقے ہیں. ہاں, لیکن اس کے اوپر ہی ان کا زور ہوتا ہے کہ وہ مطلب اہل بیت کی تعریف ان سے برداشت نہیں. ہاں, بیان نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ میرا مطلب ہے ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, فلاں کو مانتے ہو, لیکن بیان کرنا اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کے جلسے, جیسے صحابہ کرام کی کانفرنس جی نعرے لگاتے ہیں, لگائے نا, اس طرح نہیں کرتے. تو پھر اس طرح پھر اپنے ذہن میں جو آیا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا, جو چیزیں انہوں نے چھپائی ہوئی تھی سب نے ایکسپوز کر دیا. انجینئر صاحب نے بتا دیا کہ آپ بھی ایک فرقہ ہی ہیں, سب کو ایکسپوز کر دیا. ایسی بہت ساری اور بھی چیزیں, وہ جو قرآن و سنت کا لیبل لگایا تھا اتار دیا. ہاں, تو پھر تو ذوق میرا بڑھ گیا, میں اسی لیے دوبارہ پھر آیا ہوں. میں نے کہا چلو ایک دفعہ پھر. آج پوری مجلس دیکھی؟ ہاں, پوری. کیسا تھا؟ بہت ماشاءاللہ, بہت اچھا ہوا یہ جو ابھی جو دیا, کیونکہ ابھی تو انہوں نے تھوڑے بتائے ہیں. بریلویوں کے تو اتنی انہوں نے کرامتیں, جی وہ تو آلریڈی ہیں, وہ تو سب ہیں. میں نا وہ تو شروع کر دیں, ختم ہی نہیں ہوتے. اتنی کرامتیں انہوں نے. اندر گئے تھے, ملاقات ہوئی؟ نہیں ملاقات. چلے کر کے آئیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد کاشف. محمد کاشف, کدھر سے آئے ہو؟ منڈی بہاؤالدین سے. منڈی بہاؤالدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد حمزہ. حمزہ, کٹھی ہو؟ نہیں, میں لاہور سے ہوں. اچھا, آپ لاہور سے آئے ہو, دوست بن گئے ادھر؟ ہاں جی, ماشاء اللہ. اچھا کاشف, کیا کرنے آئے تھے؟ علی بھائی سے ملنے آیا تھا میں. تعارف کیسے تھا ان کا؟ تعارف تو نیگیٹو ہی ہوا تھا. پہلے وہ تھا گستاخی صحابہ سے, خادم سہرزوی صاحب نے کروایا تھا. تو اس میں میں تو جانتا بھی نہیں تھا ان کو کون ہے. تو ویڈیو ایک آ رہی تھی, کہتے ہیں کہ یہ گستاخی صحابہ ہے. تو پھر میں نے ان کی ویڈیو نکال کے دیکھنا شروع کی. تو ایک ویڈیو تھی خادم سہرزوی کی وفات کے اوپر, انہوں نے دعا وغیرہ کی تھی. تو وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو اس کے اوپر تو وہ ویسا لے جائے ان کو تھا ہی نہیں جو ہمیں دکھایا گیا تھا.
तो फिर मैंने इनकी वीडियोस देखना स्टार्ट की, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले मैं उनको सुनता था, गट्टर ना उनके सिवा किसी और को अच्छी नहीं लगता। मैंने कहा जो बाबा बड़ी कमाल बातें करते हैं। बाबा क्या चीज़ है? तो अली भाई को जब सुनना शुरू किया तो मैं तो ये अलहदा बातें हो रही कुरान और सुन्नत के जो है अंदर लिखी हुई है वही बातें हो रही हैं, तो ये जो कहानियाँ में करवाई जाती है तो ये दीन में के अंदर है ही नहीं है। तो फिर हमने खुद भी पढ़ना स्टार्ट किया। ये नहीं कि अली भाई को सुनते हैं और सही है, अली भाई जब बयान करते हैं हम खुद भी जाके चेक करते हैं। ये नहीं है कि हम जो अली भाई कह देते हैं कि लोगों की तरह अब मौलवियों से पूछ भी नहीं सकते आप। तो यही था हमारा, पहले दीन की तरफ इतना थे भी नहीं। आज फर्स्ट टाइम आए हो? पहले पिछले संडे आ चुका था। अच्छा आए हो जी। क्या देखा कि करता कुछ साथ में? अली भाई का जो रवैया है रियल लाइफ के अंदर, वीडियो में हमें भी लगता है थोड़ा, रियल लाइफ के अंदर इतने सॉफ्ट आदमी है। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, इतने मैंने आज तक कोई बंदा सॉफ्ट नहीं देखा। वीडियो के अंदर जाहिर है वो सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस है। नहीं वो तो अलग बात है ना, गुस्ताखियाँ करता है सहाबा की। नहीं हमें तो कोई किसी कोई नहीं करता। आपने कोई नहीं देखी? ठीक हो गया, झूठ बोलते हैं। ऐसे ही है ना, वो अपने दुकानें चलाने के लिए कि इधर ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो हमें वो दिन बताया नहीं होता कि वो कुरान और सुन्नत के अंदर लिखा हुआ है। वो तो हमें बाबों की कहानियाँ बताते रहते हैं, तो जो बंदा सच बताता है वो कहते हैं इसकी तरफ ना चले जाओ, क्योंकि चंदों का हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं अली भाई को, तो इसलिए ऐसे जी बस वो मसला उठाते हैं नीचे से सोना निकल आता है ना, ऐसे ही सोने की कहानी है जी। हाँ बस भाई साहब जो बयान करते हैं वो तो सोने का दरख्त बन जाता है ऐसे ही जी। चले, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हिसामुद्दीन, प्रोफेसर हिसामुद्दीन। प्रोफेसर सब किधर से? मैं रावलपिंडी से हूँ, गॉर्डन कॉलेज से रिटायर्ड हूँ, लेक्चर इन फिजिक्स हूँ। मेरे साथ ये 2 बच्चे हैं, जर्मनी से आए हैं। क्या नाम है? अम्मार। माशाल्लाह। आपका? वकार भाई। अच्छा जी, आपके दोनों बेटे हैं? जी फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आए हैं। ठीक है। और इन्हीं की फरमाइश पे ये आपको लेके आए हैं? जी, इनकी ज़्यादा फरमाइश थी। हाँ। टाइम भी इनके पास बहुत कम था। आपने जो उम्र गुजारी किस फिरके में गुजारी? मैं बेसिकली अहदीस हूँ। अहदीस हो, ठीक है, हो गया। इनको सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, सारे इनके मतलब कायदो नजरियात तो आपके क्लियर थे? हाँ क्लियर है। तो इनकी खुसूसी ख्वाहिश थी कि चलना चाहिए, तो मैंने कहा चलते हैं, कोई बात नहीं ऐसा। बच्चे ले आ रहे हैं, अब वो दौर आ गया कि बच्चे बापों को ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी हम मुत्तफिक ही हैं इनके साथ मामला के साथ। ऐसे जो इनका है, इतने दूर से आए हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ये आए ना तो मैं भी ये यूट्यूब पे इनका सुन रहा था, कहते हैं आप भी इनको सुनते हैं? मैं सुनता रहता हूँ, क्यों नहीं, ऐसे कौन सा मसला। तो कहते हैं हमारा इरादा बन रहा जाने का। मैं चलते हैं, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से अब हम। आप फर्स्ट टाइम आए? जी फर्स्ट टाइम है, ये बच्चा ही फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा। इससे पहले आपने जो इनको सुना कितना अर्सा सुना या कितना सुना, और आज आपने जो देखा आया वो सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल मुतमईन। पहले भी सुनते रहते हैं, जो कोई मसला मसाइल हो उसमें हम इनके जो ख्यालात हैं उनसे सुनते हैं, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। और बच्चे मेरा ख्याल ऐसे करते थे, और आज हमने फिज़िकली उनको सामने देखा और बड़ी खुशी हुई। और मैं पहले सोच रहा कि 5 घंटे कैसे गुजरेंगे, लेकिन 5 घंटों का हमें पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छे इंतजामात हैं। अच्छा, और अच्छा जो आपके यहाँ पे इंतज़ामिया है, बहुत अच्छे इनके सारे इंतजामात थे, हम बहुत अच्छे मुतमईन हैं। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी अमार भाई, जर्मनी में सुना जी? कैसे सुना, किसने सुनाया, खुद ही आ गया रैंडमली, क्या था? वही अबू ने जिस तरह बताया है, मुझे 5-6 साल हो गए जर्मनी गए हुए। ठीक है। तो पहले तो हम घर में इकट्ठे रहते थे, कुछ मसला होता था अबू से पूछने कि कोई मसाइल वगैरह। जब जर्मनी गए तो कई नए मसाइल आए हैं जो बंदे की ज़िंदगी में आते हैं। फिर उस टाइम उसकी इंफॉर्मेशन कोई नॉलेज लेने के लिए क्या उसमें मसाइल हैं, क्या शरीयत रूलिंग्स हैं, तो फिर गूगल किया, यूट्यूब पे देखा, तो वहाँ से तारुफ हुआ। कुछ 2 लेक्चर्स मैंने देखे, तो मुझे लगा कि ये सही तरीका है जहाँ पे आपको प्रॉपर रेफरेंसेस मिलते हैं। कोई भी आपने टॉपिक देखना है, उसके टॉपिक का नाम साथ इंजीनियर अली मिर्ज़ा लिख दें, पूरी काइंड ऑफ समरी ऑफ ऑल द जो भी हदीस हैं, जो भी रेफरेंसेस हैं, उनके साथ एक समरी मिल जाएगी, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन पे क्या रोलिंग है। तो वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट होता गया। फिर जब आप एक बार देखते हैं वही सोशल मीडिया का वो जो उनकी क्या कहते हैं एल्गोरिथम्स हैं, उनके मुताबिक आप उन्हें वही सजेशंस में आते रहते हैं। फिर उसी तरह इनके थ्रू ही और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों का तारुफ हुआ, जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद का भी मुझे उधर से तारुफ हुआ था, तफ़हीमुल कुरान का, जहाँ से उसके बाद से मैंने वो मौका था जिसके बाद से मैंने कुरान को वाकई तर्जुमे के साथ पढ़ना। और वाकई वही एक बात, ये आते हुए ये उम्रा करके हैं माशाल्लाह। तो पढ़ के वही के पहले तो होता था बस पढ़ लें, जिस तरह रमज़ान आया कुरान मुकम्मल कर लें बस। अब कोशिश यही होती है कि जो पढ़ रहे हैं उस पर अमल करेंगे तो अगला और समझ आएगा। तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि
जिन से मैंने सीखा है उनमें वन ऑफ द टॉप लिस्ट हैं कि जिन्होंने काफ़ी रहनुमाई की। डॉक्टर इसार अहमद, बल्कि वो भी यहाँ पे हैं वो भी है तो देख ले अपने बिठाए हुए हैं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमईन है। आए बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए थे, हर दफ़ा मसरूफियत में गुजरते हैं। इस दफ़ा हमने कहा मेरी भी 4-5 दिन में फ़्लाइट है, तो हमने कहा वही जितना टाइम है मौका है कोशिश करके निकाल लेते हैं। तो हम पिंडी से आए हैं जस्ट मेनली इस काम के लिए कि एक सेशन अटेंड करें और एक जो एक्चुअल फीलिंग है वो लें, क्योंकि यूट्यूब पे ऑनलाइन उस पर तो हम देखते रहते हैं। ज़बरदस्त। वकार भाई, आप भाइयों के साथ आए हैं या अपना भी कोई लगाव रखते हैं? नहीं, बिल्कुल। जाने से पहले मैं यानी जर्मनी जाने से पहले मैंने स्टार्ट किया था सुनना, लेकिन जब उधर जाके जो उधर के डिफरेंट मसाइल हैं, जिस तरह के नमाज़ें जमा करने का ये काफ़ी था उधर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, टाइम बहुत यानी सही है। अहलदीस उलमा कायल नहीं थे, इतना ज़्यादा नहीं आइडिया था, लेकिन इधर सुनने के बाद थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप नमाज़ें जमा कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो करंट इश्यूज़ पे जिस तरह बातचीत करते हैं वो एक काफ़ी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ें, तो यानी बंदा सुनता रहे, नई नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और वो बंदा अप टू डेट रहता है और काफ़ी चीज़ों में आसानी रहती है। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको टू द पॉइंट रेफरेंस मिलता है कि ये कौन सी किताब में कहाँ ये मेंशन है, तो आप ज़्यादा इजीली उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सिर्फ आप उसको थियोरेटिकली सुने और आपको कोई रेफरेंस ना मिले। आज का जो प्रोग्राम देखा कैसा था? 3-4 घंटे गुजर गए, अमेजिंग। पापा तो कह रहे पता ही नहीं चला। मैं आपको इसलिए कहूँगा कि इसी बात पे कि हम कुछ दिन पहले बेसिकली अब्बू के साथ ही मैं उधर भी गया था, मस्जिद अबू कासिम में जो तबलीगी जमात का मरकज़ है। अच्छा। तो उनका भी ना एक हमारे करीबी जो मस्जिद देवबंदी होगी है, उन्होंने हमारे कार साहब के साथ काफ़ी सलाम दुआ है, तो उन्होंने कहा फरमाइश करते रहे, काफ़ी पीछे रह के चले शब जुमा पे एक दिन चले, तो वो भी 4-5 घंटे का मैक्सिमम प्रोग्राम था। 2-1.5 घंटे के 2 बयान थे, असर से लेकर मगरिब तक, फिर मगरिब से इशा तक। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी हद तक नींद आ रही थी, अनफॉर्चुनेटली है। अच्छा, नहीं आना चाहिए भी आ सकती है। हाँ, तो लेकिन यही डर था, वो भी यही कह रहे थे ना कि उसके बाद से मुझे और ज़्यादा लग रहा था अब हमें जाना चाहिए, 5 घंटे हैं कैसे गुजरेंगे। तो लिटरली पता भी नहीं लगा। ऐसी एक प्रॉपर फ्लो चल रहा है, एक हर चीज़ ऐसे मैनेज हुई हुई है, कार पार्क से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके एवरीथिंग, जिस तरह डीलिंग हो रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपका दिल करता है, आप ज़ाहिर बात है एक बार दिल से दुआएं निकलती हैं, फिर आप अच्छी बातें खुद भी कहते हैं, कोई ना भी पूछे आप आगे से बताते हैं। और यही चीज़ होनी चाहिए, जो जिस पे आप बिलीव करें वो आपके एक्शन से, आपके रहन सहन से, डीलिंग से, लोगों से वो नज़र भी आए, ना कि सिर्फ बातों में आए। बहुत शुक्रिया भैया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर। आप भी भैया साथ हो? जी। क्या नाम है? अदनान। किधर से आए हो? जंग से। जंग से आप दोनों दोस्तों, भाइयों, कज़न हो? दोस्तों। एक और भी है हमारा। अच्छा, तीन दोस्त। कैसे आना हुआ? हम पहले हम 2 हफ्ता पहले आए, फिर अब हम एक दोस्त को लेकर आए। हमने इधर से मुस्लिम बुखारी दोनों हमने जिल्दें लेनी थी यहाँ से, तो हम इस वजह से अब एक दोस्त को भी साथ लाए। अली भाई ने कहा था नहीं साली बुक्स लेनी थी या इंजीनियर साहब को सुनते भी हैं? सुनते भी हैं हम तो कब से सुन रहे हैं। जान तो वैसे देवबंदियों का वो था ना, देवबंदियों का नहीं, ज़्यादा बरेलवी वहाँ मतलब राज कर रहे हैं, या अच्छा दूसरे हैं लुधियानवी, वो लुधियानवी ग्रुप। बिल्कुल हाँ, वो भी ज़्यादा है, साहबा वाले थे ना। हाँ वही, लेकिन वो दरबार वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो हम बेसिकली हम जो पहले हम ना दरबारी थे हम, कट्टर बरेलवी थे हम पहले। तो हम फिर अली भाई को तारुफ ऐसे हुआ था कि ये जो हमारे मौलवी थे वो ही कहते थे, ये कौन थे? समर साहब। अच्छा। वो गालियाँ निकालता था। हमने कहा ये सुनकर तो देखें ये क्या मतलब वो अली भाई कहते क्या हैं। तो हमने जब सुनना स्टार्ट किया तो हमें पता चला ये बंदा ठीक कह रहा है। ये तो सारे हमें कहानी बात ज़ाहिर बात है कि थे, दुनिया मान रही है और इंशाअल्लाह सारे मान जाएंगे। समर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना फिर आपको। बहुत जी बहुत। वो अभी अगर वो बात ना करता आप कैसे आते हैं? वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो बात ना करता कैसे आते हैं? जी बिल्कुल। वो अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमें बता रहा है, उससे फिर हमें बहुत ज़्यादा पता चल रहा है अभी। तो वो
फिर अली भाई की वो मोहब्बत है। आज फर्स्ट टाइम आए? अच्छा दूसरी दफा आए? हम दूसरी दफा आए। प्रोग्राम कैसा था, देखा सारा? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हमने सारा देखा। हम फ्रंट पे बैठे थे, एक दूसरी लाइन में बैठे। ठीक हो गया। कैसा माहौल है यहाँ का, लोग और इनका रवैया? ये लोग तो इल्जाम भी लगाते हैं कि बदतमीज भी है, बदअखलाक भी है। जैसे सुना था वैसा कोई भी नहीं देखा गया। अच्छा, गुस्ताख भी है, वो तो कहते गुस्ताख है साहब, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, आपने भी सुना है, हमने भी सुना है। बाकी अल्लाह फजल करेगा इंशाल्लाह। बाकी हमने बहुत अली भाई को बहुत सुनते भी हैं, बहुत ज़्यादा। अभी आप देखें नौजवान यूथ जो है तकरीबन 18 से 16 से जो 30 तक है, ये तो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे मतलब कि ऊपर जो लोग हैं वो भी बहुत चाह रहे हैं। अभी ये जो सिस्टम ज़्यादा चल रहा था ना दरबार वाला, उससे हमें थोड़ा सा जो है ना वो पनाह मिल जाएगी। हम बहुत इस चीज़ से हम शिरक जो ज़्यादा तो ना लदी हुई दबी हुई कौम, शिरक में घुसी हुई कौम, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बेसिकली जिस गांव से तलक रखते हैं ना, वहाँ जो है ना 2 दरबार तो इतने मशहूर हैं, ये पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं वहाँ। तो हम ऐसी जगह से आना, तो फिर इससे हम मुश्किल होती है। हम जो अब मसलन हम जो फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो हमें पीछे से कहा ये तो मिर्ज़ाई हो गए, ये हो गए, मतलब ये तो सबको सुनना पड़ता है। तो अभी तक जो सीखा आप लोगों को दावत दे रहे हो, समझा रहे हो अपने अजीज़ों कारब में दे रहे हैं, दावत का काम जारी रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल को आगे रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम दावत का काम कर रहे हैं और हम अपनी जेब से ये किताबें लेने आए हैं। और हमें दूसरा अली भाई से हमें ये गुजारिश है कि हमें मुस्लिम की किताबें नहीं मिल रही, बुखारी की 3 जिल्दें मिल रही हैं और हमें वो भी चाहिए। बेशक ऑनलाइन सिस्टम वो उस्मान भाई जरा रब्ता कर ले, वो बता देंगे आपको। उनसे हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा यहाँ आप बैठे। तो चले वो हल कर देंगे ना, वो नो वरी, वो हल कर देंगे। चलो ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। आ जाओ उस्मान भाई जरा रब्ता कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चा क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गफूर अनवर। मोहम्मद गफूर अनवर, किधर से आए हो? मैं गुजरात के लवाही का पंजन किसाना से। ये गुजरात जी, हम साए हमारे जी। कैसे आना हुआ? बस मिर्ज़ा साहब की वीडियो जो सी देखी, मुझे किसी दोस्त ने बताया था कि इनको सुन के चेक करो, तो मैंने सुना, तो मुझे बहुत इनसे कुछ सीखने का मिला। आज से पहले मैं एक बरेलवी दरस में पढ़ता रहा हूँ। बहुत शिरक, बाबू को खुदा माना हुआ था एक किस्म का। अच्छा। तो बस बाबू के पुजारी थे। तो नहीं, आपकी एज कितनी है? मेरी एज 17 साल है। 17 साल के बच्चे को कैसे पता चला कि शिरक कर रहे हैं? वो इतने बड़े उलमा, वो बुजुर्ग पागल है। बस कुरान हदीस जब पढ़ी, जब देखी, आज से पहले कभी बुखारी पढ़ी नहीं थी ना, जब से पढ़ी तो पता चल गया कि इसका मतलब है फिर उन्होंने नहीं पढ़ी? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ी। उन्होंने नहीं पढ़ी, इसलिए उनको नहीं पता चल रहा कि शिरक हो रहा है। कि ये कहानी शरीफ है, और हमने जो बात की है वो मुस्लिम शरीफ से पढ़ी है। और मिर्ज़ा साहब की रेफरेंस है, अगर वो ना हमें बताते तो हम तो आखिरी दम तक गुमराही के रास्ते पे चलते। सही हो गया। अच्छा ये बताओ, इंजीनियर साहब का जिसने भी तारुफ करवाया, ठीक है, वो जब आपने सुनना शुरू किया तो फिर आगे पीछे से लोग इख्तलाफ भी कर रहे होंगे, समझा भी रहे होंगे, ऐसा भी कोई वाक़या पेश आया? ये तो बिल्कुल है ना कि मैं पहले नमाजी नहीं था, कि अगर नमाज ना पढ़ें तो हमारे माशरे में कोई ये नहीं कहता कि आपका बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता। जैसे हमने रफ़ाया दैन शुरू की है ना, तो बेनमाजी भी हमारे वाला साहब कहते हैं जी आपका बेटा तो रफ़ाया दैन कर। ये मसला तो काफ़ी मिसाइल देखने पड़ते हैं, घर के इख्तलाफात। मेरे वाला साहब जो कि बरेलवी हैं, तो उनका भी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं इधर खुद चोरी छुपे आया हूँ पर अब मैंने आना था। बाकी अब तो कोई मसला नहीं, अब तो फ़ोटो भी ले ली और फेसबुक पे भी अपलोड करेंगे बस। तो ये दीन के मामले में जो है ना, वो आपको मुशक्क़त उठानी पड़ती। ज़ाहिर बात है, उठानी पड़ती है। चलो जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम अली। अली, माशाल्लाह। किधर से आए हो? जी मैं झेलम। झेलम किधर से? ये मेरी नया बाज़ार। नया बाज़ार? हाँ जी। खैरियत थी, किधर आए थे? जी अली भाई के पास। अली भाई के पास। तारुफ कब हुआ? तारुफ तो मेरा इनसे बहुत पुराना, तकरीबन 2019-20 में। 19-20 में? हाँ जी। फर्स्ट टाइम आए हो? नहीं, मैं 1-2 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ। अच्छा, तो क्या सुना था इनके बारे में? जी इनका तारुफ यही था कि नेगेटिव भी था। अच्छा, शहर में आपके एक बंदा आ गया और ये कर रहा है, गुस्ताखियाँ कर रहा है। गुस्ताखियाँ कर रहा है। मैंने कहा चलो सुन लेते हैं। गालियाँ शालियाँ भी निकालते हो गए? हाँ जी, ज़ाहिर बात है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इधर आया था तो मैंने इनकी यूट्यूब वगैरह वीडियो वगैरह देखी। मैंने हो जाके बंदे को बंदा एक लाइव देख ले
तो मैं نہیں آپ لوگوں سے تو زیادہ گلا ہے, آپ تو شہردار تھے, آپ تو جانتے تھے, خود آ کے سن لیتے, پوچھ لیتے. ہاں جی, تو میں نے بس ان کو ادھر سنا آگے تو تصویر لگائی, تو مجھے کافی ذرا لوگوں نے کہا کہ جی کو کیا سن رہے ہو, آپ کو یہ گمراہ ہو جاؤ گے, اس طرح ہوئی ہے. لیکن مجھے اس طرح نہیں ان کو پتہ لگا کہ کوئی گمراہی والی ان میں بات نہیں ہے. قرآن و حدیث سے ساری باتیں بتاتے ہیں. کوئی مجھے ان میں ایسا نہیں پتہ لگا کہ گستاخی وغیرہ. حالانکہ میرا جو خاندان وغیرہ ہے وہ سارا بریلوی وغیرہ سے تھا. ہاں جی, تو جو بھی گستاخیاں آپ انجینئر سے بتا رہے ہیں, ہاں جی, وہ جو آپ ان کو جا کے پوچھو نا, ان سے بھی تو پوچھو نا. ہاں جی, جو نبی پاک کی گستاخیاں سراہتر کی ہوئی ہیں, جو انہوں نے اپنے نام شام کے کلمے پڑھائے ہیں, اب ان سے کون پوچھے گا؟ ہاں جی, پوچھنا چاہیے نا, علماء سے بھی پوچھنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلو جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان؟ محمد اجاز. اجاز بھائی کدھر سے آئے ہو؟ ضلع خوشاب تحصیل قید آباد. خوشاب, ماشاء اللہ. خوشاب سے جہلم. جی, ویلکم آپ کو. خیریت تھی, کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں قرآن اور حدیث سننے آئے ہیں. ادھر کوئی نہیں سناتا؟ اتنی مسجدیں ہوں گی, اتنے علماء ہوں گے. ادھر بھی سناتے ہیں, کچھ علماء ہیں جو سناتے ہیں. جو بھی آدمی قرآن اور حدیث کی بات کرے گا اس پر عمل کرنا چاہیے, آدمی کو نہیں دیکھنا چاہیے. بے شک. جو آدمی ہو, اگر آپ بھی مجھے سے قرآن اور حدیث کی بات کریں تو میں آپ کی بات پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ قرآن کی بات ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی کی مخالفت کی وجہ سے آپ اس کی وجہ سے آپ قرآن کو بھی نعوذ باللہ پیچھے کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ان کا تعارف آپ کو انجینئر صاحب کا کب ہوا, کیسے ہوا, نیگیٹو تھا, پازیٹیو تھا, کیا تھا؟ ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس وجہ سے تعارف ہوا تھا. اچھا, پہلے نہیں مانتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے؟ برے لگتے تھے, گالیاں نکالتے تھے. پہلے شرک کرتے تھے, مزاروں پر جاتے تھے, سجدے کرتے تھے, رومال ڈالتے ہو گیا. ہاں, رومال ڈالتے تھے, چادریں ڈالتے تھے جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھیں. اللہ اکبر. اس پر جو آدمی کچھ نیچے پھینک دیتے ہیں, پھر چادریں جو زیادہ ہو جاتی ہیں نا وہ پیروں کے نیچے آتی ہیں. پھر یہ بات غلط ہے. یہ کیسے ختم کیا, اس چیزیں کو سمجھ کیسے آئی؟ یہ علم کے لحاظ سے جب آدمی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کرے گا اس وقت سمجھ آئے گی. کیسے ترجمہ پڑھنا شروع کیا, نوبت کیسے آئی؟ نوبت ایسے آئی کہ عربی تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اگر میں آپ سے انگلش میں بات کروں, اگر آپ کو انگلش نہ آتی ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. جب تک آپ کی قومی زبان میں آپ سے بات کی جائے گی اس وقت وہ ٹھیک ہے, اردو میں آپ نے ترجمہ پڑھا, لیکن یہ ضرورت کیسے پیش آئی؟ ضرورت ایسے پیش آئی, پڑھنے دیتے علماء؟ نہیں, علماء کو چھوڑیں. ضرورت ایسے پیش آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی میسج آئے کمپنی کا اور آپ کو لکھا ہوا کہ بے نظیر کی طرف سے آپ کے 5,000 روپے 10,000 ہے. مسالے سمجھ رہا ہوں, میرا سوال ہی کچھ ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں نہ پڑھتے, لوگ پڑھتے, اگر پڑھتے ہو تو آج ان کے قائد صحیح نہ ہو. جو یہ ہے نا وہابی, تقریباً وہ علماء ہیں قرآن حدیث کی بات کچھ کرتے ہیں. میرے نظریے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. ویسے ان کی بات ہے بھی ٹھیک, وہ بابوں شابوں کو نہیں مانتے. اور یہ آج فرسٹ ٹائم آئے ادھر؟ جی فرسٹ ٹائم. کیسا تھا پروگرام آج؟ بہت اچھا پروگرام تھا. تقریباً 250 کلومیٹر ہے جو طے کیا. ویسے تو کراچی سے بھی لوگ آئے ہیں, کراچی سے بھی آئے ہیں. آپ کا 250 میٹر تو کچھ بھی دے رہا پھر جب ایک بندہ کراچی سے آیا ہوا ہے. اللہ کے لیے آیا نا, اللہ کے لیے, مرزا کے لیے نہیں آیا, اللہ کے لیے آیا. اللہ کے لیے. چلے جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بچہ؟ محمد ہارون. محمد ہارون, کدھر سے ہو؟ ضلع خوشاب. خوشاب سے. خوشاب سے کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ ویسے انجینئر صاحب کو دلچسپی کے لیے آئے تھے, ایک بار مل آئے, تصویر لیں. ان کو کب سے جانتے ہو, ان کا تعارف کیسے ہوا تھا, نیگیٹو تھا, ان کے بارے میں اچھا سنا, برا سنا, کیا تھا تعارف؟ تو پازیٹیو ہی ہوا تھا. ٹک ٹاک پر ویسی کلپ آیا, ہم پہلے ہی اس چیز کے قائل تھے. جو انجینئر صاحب مسلک بتا رہے ہیں نا, وہ ہم پہلے اس چیز کے قائل تھے. مسلک تو کوئی نہیں ہمارا, ہم تو مسلمان ہیں. ہاں, اس چیز کے پہلے ہی قائل تھے, لیکن جب کلپ آیا نا ٹک ٹاک پر اور زیادہ بندہ اٹریکٹ ہوا اور ان کی طرف. آج فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی فرسٹ. سنا آج ان کو؟ جی سنا. مزہ آیا؟ کیسا؟ جی مزہ آیا. ویڈیو پر اور ہے لیکن لائیو ہو رہا ہے. لائیو ہو رہا ہے. اچھا چلو جزاک اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر سے آئے ہیں؟ میں حافظ آباد. کیا نام ہے؟ امتیاز سلیم. امتیاز سلیم, حافظ آباد سے. جی سر. شہر سے, گاؤں سے؟ شہر سے.
मेन शहर से? जी मेन शहर से। आफजाबाद में तो काफ़ी सारे लड़के यहाँ पे आते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आया, मेरा दोस्त आया था इससे पहले एक दफ़ा, मेरा कोलीग भी है, तो तब तो मैं बड़ा एंटी था मिर्ज़ा साहब के। तो अच्छा, क्या करते थे, क्यों एंटी थे, क्या सुना था, सच्ची बताइएगा। नहीं मतलब ऐसे ही, मतलब असल में क्या लगता था उस वक्त? मैं बता रहा हूँ, असल में हम दीन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम जब रूटीन में जैसे चल रहे हैं तो नमाज पढ़ ली, वो जिसने बता दिया, दरबारों पे चले गए, जो मामला सारे रूटीन में चलते हैं। सही है। तो मतलब फिर इनकी मतलब वैसे ही फेम अलग, मैंने अभी भी इनका कोई यूट्यूब पे कोई प्रॉपर इनकी वीडियो भी नहीं सुनी। अच्छा। वैसे ही मैंने मतलब छोटे छोटे क्लिप देखे तो मुझे लगा कि यार बात कोई समझ में, मतलब एक कॉमन सेंस की बात होती है ना, अंडरस्टैंड, मतलब जो बंदा कर सकता है, जिस तरह की बात समझ आएगा यार, लगता है कि कोई बात है। मैं डॉक्टर इसाक साहब को भी सुना है, मतलब अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि सही है, मुझे अपना बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है कि यार सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह तक पहुँच गए, कोशिश कर रही है। अल्लाह तक तो पहुंचे ना, तौहीद तो अपनी सीधी, मुझे लग रहा है कि सबसे पहला काम तौहीद ही है। तौहीद तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं अपनी तौहीद बेहतर, तौहीद सही हुई ना तो बचत होगी, अदरवाइज बचत तो कोई नहीं। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आज अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, आज आए, आज पूरा लेक्चर देखा? जी मैंने सर, इंजीनियर साहब को सुना? हाँ जी, मैं सब आप मुझे बताएं ना, लोग सुन रहे हैं, उन्हें बताएं आज फर्स्ट टाइम आया, क्या फील किया, उनका रवैया कैसा था, ये जो सवाल है, ये जो लोग बैठे हुए होते हैं, क्योंकि मैंने उलमा कुछ कहते हैं, बंदे भी अपने हैं, कोई कहते हैं बदतमीज है, बदअखला, क्या सुना है? मैंने भी कुछ तरह के, मतलब जैसे इन्होंने आज बताया कि क्लिप थे छोटे छोटे, लोग इस तरह हाईलाइट कर देते हैं, बल्कि मैंने भी दो दिन पहले देखा था कि इनका लिखा हुआ था कि कादियानी हो, मतलब ये वो सेम बात, बल्कि मैं कल आने से पहले मैं कॉल किया आने के लिए, फिर शाम को मैंने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं, मैं सुना बाद मज़हब की जम्मू नहीं बैठना चाहिए, फिर रात को मैंने इस पर प्रॉपर सर्च की है। मैं सर्च करता रहा हूँ यूट्यूब पे, पर कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी मुझे, मगर मैंने देखा मुझे कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं मिली। फिर वो मैंने इनका एक इंटरव्यू सुना है 1 घंटा 18 मिनट का, तो उसमें मतलब कोई बंदा इन पे इंटरव्यू कर रहा था, और वो जैसे एक तनकीद कर रहे हैं ना, उससे कुछ क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था कि आपने ये कहा, यही कहा, उन्होंने हर मतलब, हालांकि वो बड़े सख्त अल्फाज से बात की, और उन्होंने बड़े हर बात के ना बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। वो इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे लगा कि यार मतलब मिलना चाहिए, खर्च कोई नहीं है, बात मतलब मुझे लगा नहीं है कि मतलब कोई बात देना है। वो आगे यहाँ पे मतलब कुछ वैसे वालदैन देखा बदमज़हब था ना ऐसे कोई बात, वालदैन के कॉन्सेप्ट के बारे में मतलब मैंने भी देखा था कि वो कह रहे थे जी अपने मतलब तो शाही को नहीं, लेकिन आज पता चला वो बात कैसे है, वो बात कैसे है। असल में बात जब हम आधी सुनते हैं इनके कहने के बाद, जब हमारी बात पूरी नहीं ना सुनाई जाती, फिर बात का कुछ और ही बन जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसी पक्की दी है वो जो अबू बैदा वाली उन्होंने हदीस सुनाई है कि बाप का सर काट के लाए, सारी का बातें ठीक है। वैसे मैं वैसे भी मैं 100% अभी भी सेटिस्फाइड, इस तरह मुझे लगता है कि जो मतलब एक सही है पॉइंट ऑफ व्यू है ना बताने का, बिल्कुल बहुत अग्रेशन है बातें। मैं बाकी भी उलमा कराम को सुनता हूँ, मैं बाकी भी जो है मुझे लग जो यही तो मसला है ना, बाकी उलमा की बातें लोगों को समझ नहीं आई। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इसलिए आई है, अग्रेशन था। नहीं ये बात नहीं, मैं आप अपना पॉइंट, आपका अपना पॉइंट मेरा ठीक है, आप अपना मुझे लगता है मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बातें ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि ये बातें प्यार से भी अच्छे तरीके से भी हो सकती है, मुझे ये लगता है। चले मैं गलत हूँ, सही हो, मुझे जो लगता है मैं तो ताजमील साहब करते हैं, बड़े प्यार से करते हैं, मुस्तफा साहब भी बड़े प्यार से, मैं उनको सुनता हूँ, और मैं उनके बाद मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा, या मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैं वहाँ काफ़ी दफ़ा गया हूँ, उनके भी बयान सुनता हूँ, मतलब वो भी अच्छी बात, तब उनकी बातें भी बड़ी समझ में आने वाली, कोई मतलब जिस तरह इनके पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनके भी पॉइंट ऑफ तकरीबन सेम है। वो भी इस तरह नहीं कहते कि हम दे देंगे सारा कुछ, वो कहते हैं खुद हम पता नहीं हमने नहीं, उन्होंने कहा है एक वीडियो में वो तू मनारे से चली मैं बुखारे से चला, वो कहा है उन्होंने, वो मैंने नहीं देखा, तो नहीं सुना तो सुन ले जाके, कहा है अगर कहा है तो ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अभी तक कोई यूट्यूब चैनल नहीं, मेरा तो सवाल ये बोर हो गया ना, अगर उन्होंने कहा है तो ठीक कहा है, नहीं तो ये होती है। नहीं मैं तू मनारे से चली मैं बुखारे से चला, नहीं मैं इस उन्होंने कहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा इतना इल्म नहीं है, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, चले रिसर्च करें, मतलब मैं वहाँ भी मुझे वो भी समझ आ रही, मुझे ये भी बातें समझ आ रही, ठीक होगा जज़ाकल्लाह। हाँ वो सुने उन्होंने वाक़या बयान किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार सैफी। अब्दुल जब्बार सैफी वो सैफी ग्रुप से तल्लुक? सिलसिला नहीं, वैसे अच्छा शॉर्टकट नाम है। अच्छा सैफी, माशाल्लाह। किधर से? नकोदर दीना। ये जेलम से? दीना से। अच्छा ये बताएं, आपको इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव क्या था? मुझे ये तारुफ हुआ था 2016 में। अच्छा
2016 में मैंने नेट पे ही देखा था इन्हें, और उसके बाद फिर मैंने जस्तजू की, चले मैंने फिर वहाँ वो उस अकेडमी में क्लासें अटेंड की, तो फिर मैं इधर हाज़िर होना शुरू हो गया। इससे पहले जो स्कूल ऑफ थॉट क्या था, कौन सा फ़िरका था? फ़िरका बरेलवी थे। हाँ, उसी सिलसिले में, क्योंकि ज़्यादातर बरेलवी है हमारे इलाके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर चीज़ों को समझने की कोशिश की, और आज कोशिश करते हैं कि सुन्नत और कुरान और हदीस के मुताबिक काम करें, जो भी करें। अच्छा, जब ये सब को सुनते थे या सुन रहे थे जी जी, तो क्या मुश्किलात आई लोग पर? अपने दोस्त, घर वाले भी, बात भाई भी समझाना शुरू कर देते हैं? बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किलात आई, मोहल्ले में, मसाजिद में, दोस्त अहबाब, यार किसको सुनो, गुमराह हो गई हो, ये हो गई हो, वैसे हो गई। मगर जब हम सुनते थे, तहकीक करते थे, ये चीज़ की रेफरेंस के हवाले से तहकीक करते थे, फिर मज़ा आता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त तो हमारी हर मसाजिद में मेरे साथ बेशुमार दोस्त खड़े होते हैं जो रफ़ायदैन से नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। जिस वक्त मैंने शुरू की, बिल्कुल सही है, जिस वक्त मैंने शुरू की थी उस वक्त एक ही दोस्त होता था मसाजिद में, कि वो भी जब मैं करता था तो वो इतराज़ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस भी मस्जिद में जाएं आपको नजर आएंगे जी, बिल्कुल नमाज़ी नजर आएंगे, क्योंकि वो लोग तहकीक करके उन्हें पता है सुन्नत तरीका ही है, पहुँच गए जी, सुन्नत रास्ते पे पहुँच गए। जी जी। अच्छा, मुलाकात हुई इंजीनियर साहब से? जी, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, बहुत दफ़ा मुलाकात हुई, और बड़ी अकीदत के साथ मुलाकात होती है, और बड़ी मोहब्बत करते हैं। वैसे भी मैं तो कहता हूँ उनके बेशुमार स्टूडेंट पूरी दुनिया में हैं, मगर मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम फराज है। फराज जी। अस्सलाम वालेकुम। आपका? अहमद माज। अहमद माज, इकट्ठे हो दोनों? जी, भाइयों? अहमद माज, अहमद फराज। भाइयों? जी। कौन बड़ा कौन छोटा है? आप छोटे, ये बड़ा? यही लगा लें भले। आप बड़े हो? नहीं, माशाल्लाह उनकी तालीम के हिसाब से ये बड़ा है। नहीं, वैसे उम्र उम्र में मैं बड़ा हूँ। उम्र से आप किधर से आए आप लोग? हम लोग आए सिंध, शहदादपुर, ज़िला सांगड़। सांगड़? जी, हैदराबाद के ठीक 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 ठीक। सांगड़ में भी पिछले दिनों वो जो ऊँटनी वाला वाक़या उधर ही हुआ है? जी जी, उसी तरह उधर ही हुआ है जी। अल्लाह हुक्म। वो पीछे किसी गांव में हुआ है। हाँ, वो सांगड़ मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। जी जी, सही हो गया। अच्छा, कैसे आना हुआ? डायरेक्ट इधर आए इंजीनियर साहब को मिलने, या कोई काम था, क्या था? नहीं, स्पेशली इंजीनियर साहब को ही मिलने आए। सांगड़ से? हम बेसिकली यहाँ पे छुट्टियों पे आए हुए थे इस्लामाबाद। ठीक हो गया। तो नियत तो घर से ही सही है, सही है, सही है। मैं वैसे इधर इस्लामाबाद ही होता हूँ, ये भाई होते हैं। अच्छा। मैं सिंध में होता हूँ। मैं अभी जैसे भाई वालों के पास और दादा वालों के पास आ रहा था, तो वहीं से ही सोच के आया था कि इस बार तो चक्कर लगाते हैं झेलम जरूर। तारुफ कैसे हुआ इंजीनियर साहब का? कब हुआ? नेगेटिव था, पॉजिटिव था, क्या था? मुझे तो पॉजिटिव ही हुआ डायरेक्ट। अच्छा। क्योंकि पहले से ही एक तो दिमाग में, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो पहले से दिमाग में था कि सही कौन है इनमें से। तो ऐसे ही एक कोई मसला वगैरह कोई सर्च कर रहा था मैं यूट्यूब पे, अभी वो तो याद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल ये बुजुर्गों वगैरह में थोड़ी कन्फ्यूजन थी कि आखिर सिस्टम क्या है, इतना कुछ होता भी है नहीं। तो उसके बारे में मैं सर्च कर रहा था, इंजीनियर साहब की वीडियो आ गई, तो एक एक चीज़ हदीस के मुताबिक। तो मेरा ख्याल है कि पहली वीडियो में ही मैंने कहा ये बंदा बात तो सही कर रहा है। बिल्कुल। फिर बस मैंने एक दो वीडियो, और फिर मैंने डायरेक्ट जो है ना नमाज का तरीका निकाला। माशाल्लाह। क्योंकि वही बात है कि कलमे के बाद सबसे पहले नमाज है। सही। तो उस हिसाब से जो है मैंने सबसे पहले नमाज का तरीका निकाला, और यूँ समझें कि ज़्यादा एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैंने नमाज वीडियोस भी देखी इंजीनियर साहब की। फिर जाहिर सी बात है पक्की भी करनी है, एकदम तो नहीं माननी किसी की बात, तो वो पक्की की। एक वो किताब है नमाज नबवी, हाँ, रेफरेंसेस इस्लाम 360 भी दो। जी जी, और उधर से रेफरेंस वगैरह निकाल वगैरह के मैंने देखा ये वाकई बात तो सही है। फिर नमाज चेंज की सबसे पहले, और फिर जाहिर सी बात है जब बंदा इतना बड़ा स्टेप ले ले तो फिर तो बंदा भी इसी रास्ते पे चल पड़ता है। भाई को तारुफ आपने कराया या आपको खुद हुआ? हमें भी इसी तरीके से तारुफ हुआ ना, जब इसे पता लगा, इसे मतलब एक जी हुआ कि फिर मैंने भी देखनी शुरू की। मैंने कहा चले उस हिसाब से, फिर जब इसने नमाज भी चेंज की तो मुझे और ज़्यादा हुआ। तो फिर इसी तरह हमें तकरीबन 4 साल हो गए हैं इंजीनियर साहब को सुनते हुए ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी, हम जितने भाई हैं 3 भाई हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब की जो, वो तो नहीं कहेंगे उनके तरीका मुताबिक, लेकिन जो उन्होंने हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज बताई, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आज आए, प्रोग्राम सारा देखा, कैसा था प्रोग्राम? माहौल कैसा था एकेडमी का? और जो लोग आते नहीं यहाँ पे, पीछे से बातें करते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखें, उनको तो यही कहना चाहेंगे कि देखें, आप जाहिर सी बात है आप लोग सुनते भी होंगे, लेकिन वो मैंने देखा है जैसे हमें 4 साल हो गए हैं, तो हम 4 सालों में हमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बंदे टकरे होंगे
जो हमें कहते होंगे ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। नमाज जब बंदा रफ़ा दैन पे आ जाता है, उस पे सवाल शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बगैर रफ़ा दैन के पढ़ते थे। तो जब हम पे बात आई तो हमने उन्हें सबूत देना शुरू किया। हमने ये नहीं कहा हमने इंजीनियर को सुना, हमने ये किया, हमने वो किया, क्योंकि अली भाई भी यही होना भी यही चाहिए कि ये पढ़ लो भाई, बिल्कुल होना भी यही चाहिए, ऐसा ही है। तो हमें जब पता लगा कि यार अब हम वो चीज़ें करते हैं, अब हम जब उन्हें लेकर आए कि आप हदीस पढ़ो, कुरान पढ़ो, उनके यही मसले थे कि आप इसके बगैर पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। तो ये सबसे जो है ना बड़ी चीज़ थी, जो इंसान खुद भी अगर उसको नज़र भी आए ना कि अली भाई को है या वगैरह वगैरह, वो खुद पढ़ ले भाई, अली भाई को साइड पे रख दे, वो जो बात बोल रहे हैं उसको पढ़ ले खुद। जब वो पढ़ेगा एक दफ़ा वो पढ़ना शुरू कर देगा ना, और अक्सर लोग इसी वजह से नहीं पढ़ते, पढ़ लिया तो अमल करना पड़ जाएगा, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा। तो ये अच्छा इशू है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम, जो आपने देखा, जो आपने सुना? वो बेहतरीन रहा, क्योंकि वही बात है कि लेक्चर तो हम अटेंड वीडियो पे भी देखते हैं। लाइव देखने का मजा आया? लाइव देखने का था और मुलाकात का बस था। हो गई मुलाकात? अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अल्लाह, आपकी भी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले बहुत शुक्रिया चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।